हेलो, वी आर गोइंग टू स्टडी द लंडन सिस्टम क्वीन B6 लाइन टुडे। और यहाँ पे स्टार्ट करता है वाइट स्टार्ट विद D4 and F6 इमीडिएटली ऑन टॉपिक। D4 and F6 और वाइट यहाँ पे बिशप F4 प्ले करता है। सो वाइट इज प्लेइंग लंडन सिस्टम बिशप F4, प्लान इज E3 C3 नाइट F3 नाइट D2 बिशप D3 एंड कैसल। बट यहाँ पे ब्लैक एक डिफरेंट वेरिएशन स्टडी प्ले करता है। यहाँ पे ब्लैक प्ले करता है C5 और ये ट्रिकी लाइन है। यहाँ पे ट्रैप भी है जो वाइट के एंड से है, लेकिन यहाँ पे ट्रैप होने के बावजूद भी इन डिस्पाइट ऑफ ट्रैप व्हाइट कम्स इन डेंजर। मैंने ब्लैक तो ट्रैप प्ले करता है, ब्लैक caught in a trap also, but after that also white not having very sufficient material or sufficient compensation for the trap. So यहाँ पे white will play E3. So white will continue with the E3 in this position and black immediately play queen B6. So black क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, black is threatening to capture the queen takes B2. And in this point, we have to take a call. What should we do? Now, here, the most logical move is knight to A3. Now, why not knight C3? See, suppose if you go knight C3, and black will not capture it. Black यहाँ पे capture नहीं करता. Black just play A6. Now, the problem is you cannot play C4 move. The C4 is blocked. Second is knight not having any great square. Like this knight not having any good squares to play. But despite of instead of that, if you go knight A3, if black played A6, stop that trap. So you have very nice move knight C4 and white is clearly better here. So black cannot capture the B2 pawn. Black has to go back on queen A7. And believe me, the only move available here is queen A7. Because if you play queen D8, then again there is a problem. D takes C5 is the problem. And now this is clearly plus for the white side. So queen B6, but anyway, we can play knight C3 also. But if you play practically on the board, I would recommend you go for the knight A3, guys. So knight A3 and black will continue with the queen takes B2. Now in this position, yes, of course, we are losing the knight. There is a check is also possible. And here, why white played knight A3? तो यहाँ पे white एक trap play कर रहा है और white is playing knight to B5. ठीक है, यानी व्हाइट यहाँ पे ट्रैप प्ले करता है और व्हाइट कहता है कि चलो ठीक है, आपने B2 पॉन तो ले लिया, यू हैव टेकन माय B2 पॉन, बट नाउ आई एम गोइंग टू प्लान टू ट्रैप योर क्वीन। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग टू ट्रैप योर क्वीन। तो यहाँ पे नाइट B5 और ब्लैक के पास देखो, क्योंकि द प्रॉब्लम विद दिस नाइट C7 और ब्लैक इज हैविंग ओनली टू मूव्स, वन इज कैन प्ले नाइट A6 और नाइट D5। ठीक है, दीज आर द टू मूव्स अवेलेबल विद द ब्लैक साइड। Now, what is the most recommended move from the black side? So knight D5 is the most logical move, or everybody from black side should play knight to D5. Now we'll see what happened if you play knight A6. क्योंकि दो ही मूव है ना, यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे ब्लैक को C7 को स्क्वायर प्रोटेक्ट करना है। Black has to protect C7, and that C7 only can be protected by knight A6 or knight D5. There's only two way he can protect. But here, suppose, like if you say knight A6, why knight A6 is not logical and it's a blender also. If somebody played knight A6, then white will go very simple move. You can pause here, players. Text me in chat box, those who are studying live. Text me in chat box, what is the best move from the white side? Next 30 seconds. 30 seconds. How should white continue in this position? White to play and win the game. So, players, quickly. It's very easy move. If you have studied the studied the London system, yes, correct. Some students have given very correct answer. Okay, so let me check 2 3 student. Yes, starting yes, correct move. A3 is a perfect move. Yes, A3 is perfect move. Now you are planning to trap the queen, opponent's queen. Now suppose black played E6, which is looks very logical move. E6. Then we'll go for rook B1. Now you can see queen takes A2 is not possible because A3 is there.
यू डोंट हैव एनी स्क्वायर, ब्लैक के पास कोई भी स्क्वायर नहीं है एक्सेप्ट क्वीन टू A2. एंड देन नाउ नेक्स्ट मूव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो प्लेयर्स क्विकली 30 seconds to text here. Think in this position. What is the next move from the white side? कैसे ट्रैप करेंगे यहाँ पे? नो, यहाँ पे एक सरप्राइज है. क्वीन C1 इज नॉट करेक्ट मूव गाइस. क्वीन C1 यहाँ पे करेक्ट मूव नहीं है. आई नो मेनी ऑफ यू गिवन द क्वीन C1. इट्स बिट सरप्राइज. क्या प्रॉब्लम है क्वीन C1 पे, ये देख लेते. यहाँ पे क्वीन C1 एक तो करेक्ट मूव नहीं है. मूव क्या है यहाँ पे? रुक B3. प्लान क्या है? रुक B3. ठीक है. सो वॉट एवर द ब्लैक प्लेट. अब देखो यहाँ पे नाइट अगर नहीं प्ले करता है D5 तो नाइट C3 और क्वीन ट्रैप. तो नाइट D5 फोर्स हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. नाइट D5 और यहाँ पे आप क्या करेंगे? बिशप सेव कर लेंगे. विल प्ले बिशप G3. कोई है ही नहीं है, नो हरी, क्योंकि क्वीन यहां से भाग ही नहीं सकता. देयर इज नो स्क्वायर फॉर द क्वीन. सो C टेक्स D4. चलो प्लान क्या है? यहां से कुछ तो भी ट्राई कर सकता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल बी वेरी रिलैक्स. वी को E टेक्स D4. स्टिल यहाँ पे ब्लैक जो है अभी भी ट्रैप है. ब्लैक कुछ नहीं कर सकता है. यस, ब्लैक इज हैविंग वन सैक्रिफाइस. नाइट A B4. यहाँ पे क्या मूव है? E की मूव है. यहाँ पे सैक कर सकता है. तो नाइट A B4, पॉन टेक्स B4, और यहाँ पे बिशप टेक्स B4 चेक. यू कैन नॉट प्ले C3, बट यू हैव टू प्ले C3. कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे नाइट टेक्स नहीं हो सकता क्योंकि नाइट है, रुक है. तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम. अभी भी क्वीन सेफ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सोचते हैं कि क्वीन अगर यहाँ पे प्ले करता है तो प्रॉब्लम है रुक टेक्स B4. तो क्वीन A4 हो सकता है क्या? नहीं. या क्वीन A5 हो सकता है क्या? नॉट 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 पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? C टेक्स B4 और एक पीस चला गया. ये तो कंप्लीट लॉस है. 2 पीस डाउन है. क्या यहाँ पे नाइट टेक्स C3 हो सकता था क्या? नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि नाइट टेक्स नाइट और ये सारे पीसेस क्या है? डिफेंडेड है. अगर कैप्चर करता है तो यहाँ पे तो कंप्लीट ही लॉस्ट है. ये भी नहीं कर सकते. तो यहाँ पे पॉन्टेक्स वन अगर ब्लैक ने ऐसा नहीं खेला, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ऐसा सोचता है कि नाइट सैक नहीं देता है, ब्लैक कहता है कि चलो मैं बिशप ई से, तो बिशप C4. देखो व्हाइट अपना पीसेस डेवलप कर रहा है. व्हाइट इज नो हरी टू कैप्चर दिस क्वीन. क्वीन तो मिलने ही वाली है. तो ब्लैक क्या प्ले करता है? फॉर एग्जाम्पल ब्लैक विल गोज टू द कैसल. तो यहाँ पे नाइट पहले बिशप टेक्स D5, पॉन टेक्स D5, और नाइट टू C3 एंड क्वीन इज टैप. नोबडी कैन डिफेंड दिस क्वीन. चलो भाग जाते हैं. नो थोड़ा सा हम फास्ट गए थे, थोड़ा स्लो करते हैं फिर से. क्वेश्चन यहाँ पे था नाइट नाइट A6 अगर प्ले करता है तो क्या प्रॉब्लम है? देखो इतना सीक्वेंस आपको याद रखना. अप टू दिस सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, क्योंकि यहाँ पे एक भी गड़बड़ हुई ना तो ब्लैक विल गेट एडवांटेज. तो यहाँ पे हमने क्या खेला? A3. तो यहाँ पे सबने करेक्ट आंसर दिया कि A3 इज अ करेक्ट मूव. फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे और क्या मूव होगा, ब्लैक क्या कैसे डिफेंड करेगा. तो ब्लैक यहाँ पे प्ले करेगा नाइट D5. तो रुक B1, क्वीन A2. और यहाँ पे हमने जो कॉमन आंसर था ना, वो था क्वीन C1 यहाँ पे. तो हमने क्या खेला था? यहाँ पे रुक B3 खेला था. करेक्ट है, ये हमने स्टडी किया था. बट देखते कि क्वीन B1 क्यों गलत है, या क्या प्रॉब्लम होगा क्वीन. अब प्रॉब्लम क्या है? नाइट टेक्स पॉन टेक्स F4. ये तो फोर्स है. और क्वीन चली जाएगा E6 पे. चेक. बिशप E2 खेलना फोर्स है. और ब्लैक सिंपली प्लेड G6, डेवलप हिज पीसेस. आपको नाइट F3 प्ले करना पड़ेगा, बिशप G7. और ब्लैक अब व्हाइट अगर आप कैसल भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल कैसल तो नहीं कर पाओगे आप क्योंकि आपको अभी क्वीन प्ले करना पड़ेगा. और यहाँ पे ब्लैक विल सिंपली कैसल, यू विल कैसल. और देखो आपको जो एडवांटेज था वो अभी नहीं है. यू आर जस्ट वन. बैक जाते हैं फिर से इसी पोजीशन पे. गेम स्टार्ट ऐसे हुआ था. D4 NF6, बिशप F4, C5 E3, क्वीन B6. ये लाइन है. और ये लाइन उतनी इजी नहीं है जितना हमने सोचा था, या जितना हमने सोचा था कि चलो नाइट C3 नाइट A3 प्ले करके क्वीन को ट्रैप कर लेंगे. ऐसा नहीं होता है. अगर हम नाइट A3 प्ले करते हैं तो क्वीन टेक्स B2. यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट किया था नाइट B5. और यहाँ हमने देखा था नाइट टू A6, ये वेरिएशन. और यहाँ पे A3. यहाँ तक तो सबको पता है, करेक्ट आंसर दिया है. क्वेश्चन है इसके बाद कैसे कंटिन्यू करें. अब यहाँ पे ब्लैक के पास क्या है? नाइट D5. यस, करेक्ट मूव. रुक B1,
क्वीन C1 पे मैंने बताया था क्या प्रॉब्लम है, क्वीन C1 पे प्रॉब्लम है नाइट टेक्स F4, और जैसे ही नाइट टेक्स F4 होगा, आप यहाँ पे ना इस क्वीन को ट्रैप नहीं कर सकते, सर। ठीक है, क्वीन को ट्रैप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन पे, सर ठीक है। आपसे कुछ तो बोलना था। अब विल कम टू द डिस्कशन, हाँ डिस्कशन पे आएंगे हम, ठीक है, डोंट वरी। सर। सर कुछ तो बोलना था। हम डिस्कशन पे आएंगे बेटा, वी विल डिस्कस, रियांश विल डिस्कस टॉपिक, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, पहले हम स्टडी कर लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं पूरा, ठीक है, उसका डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। चलो, तो यहाँ पे हम फिर से बैक आ जाते हैं, नाइट A6 रिपीट आते हैं, नाइट A6 A3, और यहाँ पे मूव है इस पोजीशन पे ब्लैक का नाइट D5, रुक B1 क्वीन A2, और मैंने जो कहा कि यहाँ पे क्वीन C1 इज अ ब्लेंडर, आई वोंट कॉल इट ब्लेंडर, लेकिन ये बैड इसलिए मूव है क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा एडवांटेज क्या है, चला गया। और यहाँ पे डिफिकल्ट है इस पोजीशन को ट्रैप करना, क्योंकि अभी ब्लैक बेटर है, तो आपने पूरा एडवांटेज दे दिया। चलो, हाँ यहाँ पे एक मूव हो सकती है क्वीन टेक्स, और यहाँ पे आपको प्ले करना है C4, स्टिल दैट इज क्वीन कैन बी, यू कैन ट्रैप द क्वीन यहाँ पे, लेकिन आपका ऑलरेडी एक पीस जा चुका है, तो क्वीन C1 नहीं प्ले करेंगे, और रुक B3 हमने कहा था यहाँ पे रुक B3 खेलना फोर्स है, सी टेक्स डी, जो रुक B3 सी टेक्स डी, या फिर अच्छा यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या नाइट टेक्स बिशप कर सकते हैं क्या, यस, ब्लैक कैन गो फॉर नाइट टेक्स बिशप, तो एफ टेक्स प्ले कर लो, एंड द प्रॉब्लम हियर फॉर द वाइट इज knight F3, suppose if you play D5 E6 whatever, then the move is knight to C3 guys, मूव क्या है यहाँ पे, नाइट C3 अगेन, यू सेड सर व्हाई वी आर गिविंग दिस पीस, लाइक नाइट क्यों दे रहे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये तो फ्री में जा रहा है, नहीं ये फ्री में नहीं जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है, बिशप B5 चेक, बिशप D7, और बिशप टेक्स D7, किंग टेक्स D7 विच इज अ फोर्स, एंड नाउ क्वीन टेक्स D5 गाइस, किंग E8 फोर्स, यहाँ पे मेट है इस गेम में, सो क्वीन B5 चेक, किंग को वापस आना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो ना नेक्स्ट मूव में नाइट D5, अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, ब्लैक और एक पीस दे रहा है, ब्लैक कहता है कि चलो क्वीन A1 किंग E2, आप और एक पीस ले लो, क्वीन टेक्स लो, बट देयर इज अ चेकमेट, क्वीन टेक्स E1, वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी है। बात जाते हैं फिर से, ठीक है, हमने देखा था कि क्या क्या किया था हमने यहाँ पे, फिर से बैक जाते हैं, क्वीन B6 लाइन, यहाँ पे फिर से स्टार्ट, D4 NF6 बिशप F4 C5 E3 क्वीन B6, क्वीन B6 वेरिएशन हम स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, एवरीथिंग अबाउट क्वीन B6, यानी इसके बाद आपका अपोनेंट क्वीन B6 प्ले करे तो आपको ये सारे वेरिएशंस पता होना चाहिए। यहाँ पे नाइट A3, क्योंकि मैंने क्या कहा कि नाइट C3 क्यों थोड़ा सा खराब है, क्योंकि फिर बाद में ना A6 के बाद नाइट के पास स्क्वायर नहीं है, तो नाइट A3 प्ले करो, अगर A6 प्ले किया तो नाइट C4 आपके पास स्क्वायर है, क्वीन टेक्स B6 और नाइट B5, और यहाँ पे नाइट A6, ये हम वेरिएशन स्टडी करें, ओनली मूव इज A3, यहाँ तक सबको पता है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो ब्लैक है उसके पास क्या मूव है, लेट्स सी, ब्लैक प्ले करते हैं D6 या नाइट D5, हम ये हमने स्टडी किया था, ये करेक्ट मूव है ब्लैक का, ब्लैक विल गो नाइट टू D5, रुक B1 क्वीन A2, और मैंने कहा था यहाँ पे क्वीन C1 नहीं खेलना है, नाइट टेक्स F4 और क्वीन E6, यहाँ पे व्हाइट बच जाएगा, यहाँ पे मूव है रुक टू B3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा था कि, फिर से देखो हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे ये वेरिएशन, हमने देखा कि क्या सर यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं क्या, कैप्चर करने के बाद, और यहाँ पे देखो अब नाइट C3 नहीं आ रहा है, क्यों C3 नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वीन को ट्रैप करना है तो नाइट C3, लेकिन यहाँ पे आएगा नाइट F3, कोई घाई नहीं करना है, क्वीन के पास कोई स्क्वायर ही नहीं है, बट फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव आता है, नाइट टू C5, अब यहाँ पे हमारा रुक डेंजर में है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल खेल लेंगे बिशप C4, अब नाइट आप रुक कैप्चर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट टेक्स रुक, और यहाँ पे बिशप टेक्स B3, अच्छा क्वीन के लिए जगह है, B2 स्क्वायर तो हो गया पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे व्हाइट कंप्लीटली एडवांटेज विद द कैसल। अब आप होगी देखो सर हमारे पास तो, हमारा तो रुक चला गया है, लेकिन अभी भी क्वीन के पास कोई स्क्वायर नहीं है प्ले करने के लिए, देर इज नो स्क्वायर फॉर द क्वीन, ठीक है, शैश आई विल डिस्कस दैट, A6 बट नाइट C7, फिर वही प्रॉब्लम आ गया,
और हमको यहाँ पे क्या मिल गया, फिर से रुक मिल गया, सो वी आर विनिंग दिस गेम अगेन। ठीक है। या फिर ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन लाइक ऑब्वियसली सारे पीसेस ब्लैक के एक भी पीसेस डेवलप नहीं है, ब्लैक इसे डिफेंड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल रुक बी वन प्ले करता है, तो नाइट ई5 आ रहा है, अब F7 अटैक है, और अगर ये प्ले होता है तो फिर नाइट C4, और आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से क्वीन ट्रैप होगी। देखो टारगेट क्या था, यहाँ पे रुक बी वन, कैसल के बाद रुक बी वन, प्लान है नाइट ई5, अटैक कहाँ पे, F7 पे, बट अटैक F7 का नहीं है, A6 या D5 वॉट एवर, D5, तो नाइट C7। अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, किंग के पास क्वेरी नहीं है। किंग D8 अगर खेलता है तो नाइट टिक्स D5 आ रहा है, अब देखो नाइट टिक्स सी से नाइट टिक्स F7 भी आ रहा है, एंड दिस पोजिशन इट्स ऑलमोस्ट लॉस्ट फॉर द ब्लैक सेंटर किंग, ये लास्ट, और फिर से यहाँ पे नाइट C4 आ रहा है। तो यहाँ पे यानी ब्लैक यहाँ पे डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है इस पोजीशन को। तो मूव क्या है यहाँ पे, यस, नाइट A6, A3, और यहाँ पे नाइट D5 जो मेन वेरिएशन है, रुक बी वन, क्वीन A2, और यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल रुक टू B3 प्ले करना है। यू कैन गो फॉर रुक टू B3, और यहाँ पे जो क्वीन रहेगा ये ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो वेरिएशन पता चल गया हमें कि नाइट D5, रुक बी वन, क्वीन B3, रुक B3, यहाँ पे रुक B3 नॉट क्वीन C1, और ब्लैक में गो फॉर D6 और समथिंग, ब्लैक यहाँ पे हो सकता है D6 प्ले करे, नाउ क्वीन C1, देखो नाइट C3 आ रहा है और यहाँ पे क्वीन ट्रैप हो रहा है फिर से, और यहाँ पे कैप्चर भी अभी भी अगर कैप्चर करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम इसे कैप्चर ही नहीं करेंगे, नाइट C3 प्ले करेंगे, और क्वीन फिर से ट्रैप हो गई, अगेन द क्वीन इज ट्रैप। तो रुक B3 इज अ की मूव, नॉट क्वीन C1। ठीक है, क्वीन C1 हमने पढ़ा था एक बार, लेकिन वो करेक्ट मूव है। तो नाइट A6 नहीं होता है, ऐसा समझते हैं नाइट D5। फिर से मेडिशन पे आते हैं, D4 एंड F6, सी बिशप F4, C5, E3, क्वीन B6, नाइट A3, नाइट, अब क्वीन टेक्स B2, क्योंकि हम यही लाइन स्टडी करें, और यहाँ पे ब्लैक ऐसा समझते हैं नाइट B5 के बाद ब्लैक प्ले करता है नाइट D5। देखो नाइट D5 क्या हो रहा है, नाइट D5 से दो चीजें हो रही, एक तो आपके बिशप पे अटैक हो रहा है, और दूसरा जो C7 वाला कंट्रोल है ना वो भी हो रहा है। अब इस स्क्वायर इस पोजीशन में कैसे प्ले करेंगे, ये एंटायरली डिफरेंट है। देखो नाइट A6 से तो हमने समझ लिया कि नाइट A6 में तो आपको A3 प्ले करके खेल, लेकिन अगर नाइट D5 आता है तो A3 नहीं, A6 वाला वेरिएशन नहीं है, A3 वाला वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे हम प्ले करेंगे रुक बी वन डायरेक्ट, और यहाँ पे एक पॉन सैक दे देंगे, क्वीन टेक्स A2, रुक A1 अगेन, क्वीन B2। अब यहाँ पे ना एक ड्रॉ मिल रहा है हमें। ठीक है, अगर आपका अपोनेंट आपसे 200-300 पॉइंट ड्रॉ ऊपर है, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं ये मेरा ऐसा गेम है कि मैं नेशनल खेल रही हूँ या नेशनल खेल रहा हूँ, और मेरा फोर्थ राउंड है, फिफ्थ राउंड है, और बहुत प्लेयर के साथ है, चांसेस कम है इस गेम को ड्रॉ भी किया तो भी चल जाता है, तो आपको ड्रॉ पोजीशन आना चाहिए, ड्रॉ कब निकालते हैं वो भी आना चाहिए। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका अपन अगर आपसे लाइक IM खेल रहा है, GM खेल रहा है, और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ड्रॉ भी कर लिया ना मेरे लिए भी नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि ड्रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गेम में, एक ड्रॉ भी आपका नेशनल आपको आपको 10 से डायरेक्ट 5 पे लेके आ सकता है। क्योंकि आप अगर लास्ट में टैली देखेंगे ना, तो बहुत सारे प्लेयर के 6 6 6 6 पॉइंट होते हैं, फिर 3 4 प्लेयर के 6.5 6.5 6.5 होते हैं, एक प्लेयर का 7 होता है, और एक प्लेयर का 7.5 होता है, इस टाइप का पेयरिंग होता है। यानी जो प्लेयर अभी हमारे पास 7 पॉइंट होंगे ना, 7 पॉइंट पे हम फॉर एग्जाम्पल फोर्थ आ रहे हैं, तो 7.5 पे हम डायरेक्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं। यानी बहुत बार टॉप प्लेयर के साथ ड्रॉ करना ये भी स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार जो टॉप बोर्ड होते हैं ना, उनके साथ प्लेयर रेडी होते हैं कि हाँ चलो आप हाईएस्ट रेटेड प्लेयर हो ना, आई रिस्पेक्ट यू, चलो मैं आपके साथ ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाकी सब गेम जीत सकता हूँ। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कहेंगे कि आपको ड्रॉ करना है, बिल्कुल नहीं, पहले 5 राउंड में तो बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है, पहले 5 राउंड यानी फर्स्ट 5 राउंड्स में पांचों के पांचों विन करना है, यू हैव टू विन ऑल 5 राउंड्स। उसके बाद ठीक है, खाना ड्रॉ हुआ तो चलेगा। और ये वो लाइन है, ये वो वेरिएशन है जहां पे आप 3 4 रिपीटेशन प्ले कर सकते हो, और आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको ड्रॉ नहीं करना है सपोज यहाँ पे, ऐसे कि नहीं नहीं मुझे तो ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पे, मुझे तो विन के लिए खेलना है,
तो यहाँ पे नाइट B5 नाइट D5 ये वेरिएशन देखा, और मुझे ड्रॉ नहीं करना है। तो अगर मुझे ड्रॉ नहीं करना है तो चलो रुक B1 क्वीन A2, रुक A1 जाऊंगा तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करें इस पोजीशन में, रुक A1 क्वीन B2, फिर वही वही पोजीशन। अब यहाँ पे मैं लिव कर दूंगा, मैं यहाँ पे फिर से चेक नहीं दूंगा, मेरे पास ओपन फाइल मिल गई है। अगर मुझे पॉन चाहिए तो मैं कभी भी इस पॉन को कैप्चर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन टेक एनी टाइम। और उसके बाद देखो प्रॉब्लम क्या रहेगा, यहाँ पे बिशप टेक्स नाइट भी आ रहा है ना। ऑब्वियसली हम कैप्चर नहीं करेंगे। इस पोजीशन में अगर मुझे विन के लिए खेलना है, यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, मेरा अपोनेंट जो है ना उसको मैं जीत सकता हूँ। विल गो नाइट F3, विल गो नाइट F3। अब देखो कितना कितना डिफरेंस है। यानी नाइट A6 प्ले किया तो ब्लैक की क्वीन ट्रैप हो रही है, और नाइट D5 खेला तो यहाँ पे ब्लैक दो पॉन अब है ओपनिंग में। ब्लैक क्या है, दो पॉन अब है, यानी और एक पॉन मिल गया तो ब्लैक तो बिल्कुल एक एक कंप्लीट पीस अप हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लैक के पीसेस डेवलप है क्या, क्या इस पोजीशन में आपने ड्रॉ करना चाहिए? डेफिनेटली नॉट, यू शुड नॉट ड्रॉ इट। क्यों नहीं करना है? एक तो पॉन हमें पहले ही मिल रहा है, यानी रुक टेक्स तो आप कभी भी कैप्चर कर सकते हो, पॉन टेक्स C5 तो कभी भी कैप्चर कर सकते हो, वन वन पॉन यू आर गेटिंग एवरी टाइम एनी टाइम। So what will black play? For example, black will go for knight to C6, defending C7 square. ठीक है, rook B1, queen A2, and now in this position, how we can go for it? क्या can I go for again it? बट ये तो ड्रॉ हो जाएगा, तो मुझे ये वेरिएशन तो प्ले नहीं करना है। दो पॉइंट डाउन हूं मैं, भाग जाते हैं नाइट A6। तो कैन आई प्ले ऑन इक्वलिटी, क्योंकि रुक B1 जो एडवांटेज देगा, लेकिन रुक B1 अगेन क्वीन A2। चलो रुक रुक B1 क्वीन A2, बट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें ऑर्डर। तो रुक B1 क्वीन A2, तो देखो हो क्या रहा है ना, C3 स्क्वायर हमने रुक B1 क्यों खेला ये भी देख लेते हैं। ये जो नाइट है ना यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। ठीक है, नाइट C3 नाइट टेक C3 क्वीन टेक C3 चेक आएगा तो किंग को मूव करना पड़ेगा। और इसलिए हमने क्या किया, पहले रुक B2 खेला। देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, नाइट F3, हमें ड्रॉ नहीं करना है। नाइट A6, तो हमने क्या किया, रुक B1 क्वीन A2, और C3 स्क्वायर से हटा दिया क्वीन को। तो हम खेलेंगे नाइट E5। अब मुझे आई नो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या सेम पीस ट्वाइस खेलना है? यस खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक की कोई पीसेस डेवलप नहीं है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्या आ रहा है, टेम्पो आ रहा है यहाँ पे। और इसलिए हमने नाइट E5 खेला। यानी ये नाइट E5 आपको एक एडवांटेज क्या दे रहा है, बिशप C4 वाला। तो D6, तो क्वेश्चन है कि क्या मैं बिशप C4 खेल सकता हूँ क्या यहाँ पे? यस पॉसिबल, बिशप C4। बट एक प्रॉब्लम है क्या कि यहाँ पे चेक आ जाएगा, मुझे क्वीन A5, मुझे चेक नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट ए चेक, और मुझे अपना D6 भी सेव करना है। सो आई गो नाइट C4, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो क्वीन के पास स्क्वायर नहीं बचा है, तो क्वीन को जाना पड़ेगा क्वीन A4, क्योंकि क्वीन ट्रैप हो सकती है कभी भी। क्वीन A4 दिस ओनली मूव, क्योंकि अगर क्वीन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्वीन A4 नहीं प्ले करता है, और ब्लैक सोचता है कि चलो मैं यहाँ पे ना G6 प्ले करके यहाँ पे क्या करता हूँ, कैसल करता हूँ, तो ये गेम ना ब्लैक हार जाएगा। कैसे हारेगा? अब रुक A1, और प्लेयर्स देखो यहाँ पे क्वीन ट्रैप हो गई है। क्वीन इज ट्रैप इन दिस पोजीशन, क्वीन के पास कोई भी स्क्वायर नहीं है, क्वीन के सारे स्क्वायर ब्लॉक हो चुके हैं, कांट गो एनीवेयर। बैक आते हैं, फिर से थोड़ा सा बैक आते हैं। इस पोजीशन में थे हम, क्वीन टेक्स B2 कैप्चर हुआ था, नाइट B5, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था नाइट D5। देखो कितना डिफरेंस है। नाइट A6 खेला तो पूरा गेम चेंज हो जाता है, आपको A3 रुक B1 A3 वगैरह प्ले करना है और क्वीन को ट्रैप करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रुक B1 क्वीन A2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेम ड्रॉ हो रहा है। रुक B1 रुक A1 क्वीन B2, ठीक है, फिर से ओफाइन फाइल मिल गई है हमें। अब NF3, ड्रॉ तो नहीं करेंगे यहाँ पे। ब्लैक प्ले करते हैं नाइट A6, डबल डिफेंड ऑन C7। तो अब यहाँ पे क्या, रुक B1, अब देखो हमने क्या किया है, C3 से हटा दिया इसे, और नाइट E5। प्लान क्या है, इसे बिशप C4 भी आ रहा है, या फिर नाइट टू C4 आ रहा है। ब्लैक प्ले करता है D6, नाइट C4, और यहाँ पे क्वीन ही ड्रॉप हो रही है रुक A1 से। तो क्वीन को खेलना पड़ेगा A4, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि कैप्चर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्कवर चेक आ जाएगा।
देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर रुक E1, क्या क्वेश्चन है कि क्या रुक A1 खेल सकते हैं क्या? तो रुक A1 पे अगर ये कैप्चर होता है तो नाइट D6 चेक आ जाएगा, कैप्चर और बिशप टेक्स। क्या ये ऐसा यहाँ खेल सकता है क्या? लेट्स लेट्स चेक इट आउट। क्या रुक A1 पॉसिबल है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक इस नाइट को कैप्चर नहीं करेगा, कैप्चर किया तो नाइट टेक्स D6 डिस्कवर अटैक और बिशप टेक्स सी, बिशप टेक्स B5, तो ब्लैक ऐसा नहीं करेगा, ब्लैक चेक दे देगा। और हमें हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लम है कि अब हमको C3 प्ले करना पड़ेगा, बट नाइट टेक्स C3 आ रहा है, इसलिए हम ये रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे, ये गेम लॉस्ट हो जाएगा। क्वीन A4, पहले इस नाइट को हटा देते क्योंकि नाइट परेशान कर रहा है, तो E4। बट यहाँ क्या ब्लेंडर है क्या? क्या हमने यहाँ पे बिशप दे दिया? यस, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बिशप दे दिया। ब्लैक विल कैप्चर नाइट टेक्स बिशप, और अब रुक A1, क्योंकि अब जब क्वीन प्ले करेगा, कहां पे प्ले करेगा, क्वीन B4 जब चेक देगा, तब आ रहा है C3, और अब क्वीन फिर से ट्रैप हो गई है। देखो क्वीन के पास अभी फिर से स्क्वायर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है नाइट टेक G2 आ सकता है, नाइट टेक G2। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कैप्चर नहीं करेंगे नाइट को, हम खेलेंगे किंग B2। वेरी इंटरेस्टिंग मूव, क्योंकि बिशप टेक्स कैप्चर किया तो क्वीन टेक्स क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। हम इसे हाथ ही नहीं लगेगा, हम इसे कैप्चर नहीं करेंगे। और अब ब्लैक क्या है, कंप्लीटली क्वीन डाउन है। ऑफकोर्स हमारे एक बिशप गया है, हमारे 3 पॉन गए, लेकिन 6 पॉन गए, लेकिन ब्लैक सर अब फोर्स करना पड़ेगा क्वीन टेक्स B5, और क्वीन टेक्स B5 पे नाइट टेक्स D6, पॉन टेक्स D6, और बिशप टेक्स क्वीन, किंग D8, और ये जो पोजीशन है, ये ब्लैक जो है लॉस्ट है इस पोजीशन पे। ऑफकोर्स क्वीन के हमारे पीसेस थोड़े से अनऑर्गेनाइज है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमने जो स्टडी किया आज, ये है क्वीन B6 लाइन। और क्वीन B6 लाइन पे हमने दोनों स्टडी किया कि अगर ब्लैक नाइट A6 प्ले करता है तो आपको कैसे कंटिन्यू करना है, और नाइट D5 प्ले करता है तो कैसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि दोनों के गेम बहुत डिफरेंट हो जाएंगे।